میں جلسے تقریر کرنی گلا صاف کرنا نا پھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھی کچھ بول رہا ہوں تو بول رہا ہوں. میں نے کچھ بولنا آپ کی طرف ہے آپ ہی. میں تو اب ڈرائیونگ کر رہا ہوں. فوکس روم ڈرائیونگ پہ ہے. بیٹی آ رہی ہے, اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ چلو, حالانکہ ابھی آسپا کو تو کیا مہینہ نہیں ہوا, مجھے 2 مہینے ہو گئے ہوں گے, لیکن ایسے لگ رہا ہے سرپرائز ایسے لگ رہا کہ جیسے سالوں سال گزر گئے. ہاں ملے ہوئے. تو اللہ مان کے چلو, دیکھتے ہیں پھر آگے کوئی اپڈیٹس ہوں گی وہاں, کس وجہ سے آ رہی ہے, کیا آ رہی ہے, وہ آسما نے اپنی ویڈیو میں ہاں تو آپ ہی بتا دیں. اب وہ مجھے تو ساری پھر وہ تفصیل اس طرح مجھے پتہ نہیں نا کیا ان کا وہ لکس ایوارڈ کہلاتا ہے. لکس ڈیجیٹل ایوارڈ 24 ہے جو کہ فرسٹ ٹائم ہو رہے ہیں پاکستان میں, یہ والا, جس میں انہوں نے انفلوئنسر کو باہر سے یا لوکل بھی جو بھی ہوں گے, انفلوئنسر کو صرف انوائٹ کیا. اور یہ انفلوئنسر جو ابھی تک جو ہمیں پتا جو تو یہ اصل میں ایوارڈ ان کو دے گی جن کو ان کی کمیٹی ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کرے گی. آپ کو پتا نا ایوارڈ دینے کے لیے کوئی جاتا ہے, تو لائبہ کا صرف اتنا سا کام ہوگا کہ اس نے اسٹیج پہ جانا اور ایوارڈ دینا, جس کو بھی دینا ہو, یہ بھی نہیں پتا کس کو دینا, وہ ایوارڈ دینا, بس اتنی سی اپیئرنس ہوگی اس کی. تو اس کے لیے اس کو انہوں نے انویٹیشن دیا, بلایا, سب کچھ. تو اس سلسلے میں جا رہے ہیں. لائبہ کے ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ مسعود بھی آ رہے ہیں. ہاں مسعود ظاہر ہے وہ دونوں ہیں. تو پھر اگر مسعود کہیں ان کیس کوئی ایسی وجہ ہو جاتی, جیسے تھوڑا سا دیا بھی تھا چونکہ ویکینڈ تھا ایمرجنسی میں, اور پاکستانی ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ وہ ڈیلے, رپلائی ڈیلے, وہ ڈیلے, یہ جو ایونٹ والے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپڈیٹ کرتے کرتے بھی بڑا ٹائم لیا. لائبہ کو بڑی دیر سے یہ پتہ لگا, کنفرم ہوا. تو ابھی دن ہی تھوڑے رہتے تھے, پھر اس کے لیے ویزے کا کیوں مسعود تو بغیر ویزے کے نہیں آ سکتا, تو اس لیے تھوڑا اس میں ڈیلے ہوا. آخری مومنٹ پہ اس کا اوپر سے ویکینڈ آ گیا. یہ شکر اللہ کا ہوا کہ وہ اس کا ویزا آخری مومنٹ پہ وہ ہو گیا. تو اب وہ دونوں آ رہے ہیں اور آخری ٹائم پہ وہ ایئرپورٹ پہنچے. سوچو, بالکل لاسٹ مومنٹ. بس جو کوئی ملیں گے. آج ظاہر ہے ہم لوگ لائبہ کو رات کو پک بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. مسعود کو اور لائبہ کو. آج کا بڑا ایکسائٹنگ ڈے ہے, خوشی کا دن ہے. سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے جائے, خیر خیریت سے آئے. بس اور کوئی نہیں تھا. بس کوئی لمبا اسٹے نہیں ہے اس کا, وہ 3-4-5 دن بس اس کا اسٹے. ہاں بس اس میں پروبیبلی کہ بالکل خاص بھی نہ آ پائے گا. ہاں یہ جو میری بات ہوئی تھی نا, کہتے اتنے اب 4-5 دن اس میں یہ ٹریولنگ میں 4 گھنٹے وہاں سے ادھر میر آؤ پھر واپس جاؤ. وہ کہتے ہیں کراچی بہتر ہے, وہیں چاہے جو کھانا پینا گھومنا پھرنا جو بھی کچھ ہے وہ کر کے کراچی اور اسلام آباد, پھر وہاں سے اسلام آباد جائیں گے. لاہور بھی ہو سکتا ہے لیکن اسلام آباد میں مین پہلے اسلام آباد جائیں گے, واپسی میں بھی لاہور بھی, پھر وہاں سے واپس فلائٹ پکڑیں کراچی کی جو بھی. صحیح بات. لیکن واپس پھر دوبارہ کراچی آئیں گے. ہاں انشاءاللہ. یہ کیا تھا, وہ ہوتا ہے جگانے کے لیے کہ زیادہ باتیں میں کرنے لگے ہوں, بیگم کی طرف دیکھ رہا ہوں, ان کا جاگتے رہو جاگتے رہو, ساڑھتے نہ رہو. ہاں 3:30 نہ رہو. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو خوشیاں پہنچاتا ہے. کہتے ہیں نا, اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور تو اللہ اور دیتا ہے. ظاہر ہم تو ناشکرے لوگ ہیں, اتنا شکر ادا نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے, اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں تو اللہ اور زیادہ آپ کو دیتا ہے. اور ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس دفعہ کوئی آئے گا. پرسوں سے یوں سمجھ لو کہ ہمارا دن اور رات ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا, کتنے ایکسائٹیڈ بھی ہیں, تیاری بھی کر رہے ہیں. اور کچھ گھنٹوں کو پتہ چلتا آ رہے ہیں, کچھ گھنٹوں کو پتہ چلتا نہیں ہے. وہ لائبہ کا بھی مزاج ایسے موڈ ایسا, اس نے پھر 1-2 مرتبہ اس کا یہ بھی پوزیشن بولا, یہ اپڈیٹ مجھے صحیح ٹائم پہ کر نہیں رہے. بابا مجھے کہا اس نے, بولا میں تو ان کو منع ہی کرنے لگی ہوں. میں نے اس کو روکا, میں نے کہا نہیں منع نہیں کرو. یہ پاکستان کا جو اسٹرکچر, جس طرح لوگ ہیں ایسے ہی ایونٹ کے جو مینجمنٹ کرنے والے لوگ ہیں, ان کے اوپر ہو سکتا برڈن اور ڈیلے, آپ کو لیٹ میسج کرتے ہیں, وہ میسج بھیجو ان کو, تو اس کے بعد 2 دن تک ان کا انتظار کرو, جواب ہی نہیں آ رہا. تو یہ تو کم سے کم نہیں ہونا چاہیے نا. اسی فوری جواب دو. اگلا بندہ اپنی پلان کرے, اس نے اپنے کام کو سارے کو آرگنائز کرنا ہے, اور اس کو جتنے دن وہ نہیں ہوگی 100 چیزیں ہوگی. بالکل. تو اس کو یوں سمجھ لو, اگر وہ آ رہی ہے نا آسما, یہ میں بتا دوں, شاید تمہیں بھی نہ پتا, کہ میں نے اس کو پھر فورس کیا کہ نہیں, میں نے کہا آپ آنا چاہیے, آپ کو یہ ایسا نہیں کرو. یہ 19-20 ہو جاتی ہے, دیر سے میسج دے, وہ کہتے ہیں پاپا لاسٹ مومنٹ آ گیا, بتاؤ ابھی 2-3 دن ہی رہ گئے اس میں ایونٹ میں, اور ابھی تک مجھے کچھ کنفرم نہیں کر رہے, بلا بھی رہے ہیں. تو
तुम ने आना भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका प्लान, प्रोग्राम, फाइनल सब कुछ भेजे तो नहीं ना मुझे कि ये होटल, ये कमरा, ये बुकिंग और ये इवेंट इस तरह होना है, ये करना है तुमने, उसके बाद ये है, चाहे वो मेकअप है तो चाहे वो फलाना है या वो ड्रेस है, कोई स्केच उसको कुछ नहीं अभी तक इस टाइप का दे रहे। कल हो गया है माशाल्लाह, कल फाइनल हो गया सारा। हाँ कल हो गया, और मैं कल से पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ कल से पहले की, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब इंशाल्लाह वही वारी उन्होंने बुक किया वहाँ पे, और लाइबा ने पूरी जान तोड़ तो कोशिश की कि जाहिर है वो हमें तो, हमारे लिए तो नहीं फ्री में बुक करेंगे, मेरे और जैद को तो पेड ही होना था, वो लाइबा ने बहुत, हमने भी कोशिश की, ना शेरिडन में मिला, ना उसमें मिला, मैरियट में भी नहीं मिला, क्योंकि इवेंट हो रहा है, ऑलरेडी बुक थे ना सब कुछ। तो अब हमने उनके पास ही जो क्लिफ्टन में का एरिया जहाँ पे एयरबीएनबी के थ्रू जो है लाइव वो लिया है, तो उसके इंशाल्लाह जाके आपको अपडेट दे देंगे। हाँ तो बस यही आपको अपडेट करनी थी। दुआओं में याद रखें आप सब, हमारी दुआओं में शामिल। आप ड्राइविंग कर करके पागल हो गए क्या? नहीं ना, नो टेंशन, नो इश्यूज, क्योंकि ड्राइविंग में मुझे स्ट्रेस कब होती है कराची में चलाने की कि मुझे रस्तों का ज़्यादा पता नहीं है, मेन में रस्तों का पता बाकी नहीं है। और आसफा को मैं ये कहूँगा, इसको जीपीएस को किस तरह गाइड करना ड्राइवर को, इसको वो नहीं पता होता है, फिर कहोगे बुराई की। अब देखो मसूद जब से कल से वो आया हुआ, उसको वो बताता है ना यहाँ से राइड, यहाँ कोई एक भी मैंने कोई गलती की, कोई एक भी, ये अगर जीपीएस पर, अच्छा हाँ ये बच्चे, ये मल्टीटास्क मुझसे नहीं होता कि मैं ड्राइविंग भी करूं और जीपीएस को भी पढूं एट ए टाइम, तो बस ये है, इस वजह से मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है ड्राइविंग में कराची में। फकराज और मसूद, लाइबा, इनको इतने पसंद आ रही ड्राइविंग मेरी कि पापा इतनी अच्छी और सेफ चला रहे, उनको पसंद आ रही है, और मेरी बुराइयां कर रहे हैं कि आसफा को नहीं आती जीपीएस चलानी। जीपीएस नहीं चला, मैं कार चलाने की नहीं, जीपीएस नहीं चलाना। जीपीएस की हाँ कार तुमने देखो तो कार तुमने चलानी, चला लेनी, जीपीएस नहीं उसको रीड करना। अब अगर कोई चौरंगी आ रही है, चौरस्ता आ रहा, तो उसमें से आपने राउंड अबाउट हो के आगे एग्जैक्ट कौन सी लेनी, किधर को लेनी है, तो आप का स्टाइल में ये आगे चौक आ रहा है, मैंने कहा कितनी दूर आ रहा है, भाई इतने मीटर पे आ रहा है ना, अब यूँ आप गए, हाँ यूँ गए, अब आप ऐसे करके यूँ अगर मुड़ना है तो बताए नहीं, ये बताए नहीं मुझे, क्या मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ जी, मैं राइट को यूँ बना के चला, ये पूरा घूम के उधर कहाँ चले गई, तो इधर जाना था, ये तो ये इन्होंने बताना था मुझे क्या पता। चलो थक गए थोड़ा सा, मैं थक गई, थका इसलिए गई कि हम 2 दिन से मीर पुखास में भी हमारी नींदें पूरी नहीं हुई, इसलिए थक गई। मीर पुखास में भी इस स्ट्रेस में आ रहे नहीं आ रहे, इतनी शॉर्ट टाइम रह गया, आ जाओ भाई लाइबा, उसको भी कन्विंस कर, लाइबा को भी कन्विंस करो। 2 रातें तो हम खुद नहीं सो, सारी रात इन्हीं से बातें हो रही हैं, और तीसरी तो हम इधर आ गए। अपने सेट कर दे थोड़ा है, ये रेडियो पाकिस्तान है, खबरों तो हम लोग कम है। चलिए जी माशाल्लाह, बहुत बिजी दिन गुजर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता लग ही गया था कि लाइबा और मसूद दोनों आए हुए हैं, कराची में इवेंट था लक्स वालों का अवार्ड का, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा सरंजाम हुआ, इख्तिताम हुआ, उसके बाद घूम फिर रहे हैं, और बहुत थोड़े दिनों के लिए हैं वो टोटल, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बाकी प्रोग्राम आपको मैं क्या बताऊं इस स्टेज पे। मेन चीज़ तो यही थी कि जो वो इवेंट था वो एक वो खैर खैरियत से हो गया बस मैं क्या करे, तुम बोलने लगी तुम तो खैर खैरियत से हो गया बस कहती। तो बाकी ये कि वीडियोज़ में मैंने देखा कमेंट्स में लोग वो जैसे बता भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि अंकल किधर गए, वो किधर गए, इंशाल्लाह वो अंकल इतने की हैं, बस कभी 2 दिन कंटिन्यू 2-3 दिन 4 दिन आ जाते हैं, फिर उसके बाद हफ्ता बीच में गायब भी हो जाते हैं। तो या मसला क्या कि बीच में इसको आसपास छोड़ो, ये मेरे उसके अंदर वो बार बार मैसेज आ रहा, इसको डिस्टर्ब कर दिया तुमने सारा मेरा। अच्छा तो बस और कोई ख़ास बात नहीं, इंशाल्लाह मीर पुखास जब पहुँचेंगे तो फिर वही घर, वही नाश्ते, पहुंचे हैं मीर पुखास, अभी तो आगे वही जब पहुँचेंगे सफर है लाइबा मसूद के साथ,
उनको रवाना करने के बाद फिर ये होगा, जब वो रवाना हो जाए पहले घूम फिर लें। पहले घूम तो मैं वो घूमने फिरने का भी वो सारा जो है वो करंट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट ठीक है, मेरी वीडियो तो ये तो बेशक आज ही लग जाए, लेकिन क्या करने कहाँ कहूँगा, उसकी सारी वीडियो स्लो स्लो जितनी बनेगी वो आएंगी और आप लोग देख लेंगे और आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है, और वो ठीक नहीं होता पहले से सारा मैं उनका तो आपको बता से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बता दूं मैं किसी जब हम नहीं जब हम होते मैं तो इतनी ऐसी सच्ची इतनी कोई परवाह नहीं करता, चाहे हम कहीं भी हों, कभी लाहौर हैं तो पेशावर में हैं तो हम वहाँ चले गए नारायण का गान, लेकिन ये अभी ये चूँकि साथ हैं तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जितना को उसको मख्फी कहते हैं अंग्रेजी में, खुफिया जितना रख सकते हैं, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, वो लगाएंगे वीडियो। ज़ाहिर है लाइबा भी अपनी जो भी जितना वो उससे बन पा रहा बना रही है वो भी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा डिले के उसके ऊपर आप लोगों को सब पता होगा कि कहाँ कहाँ गए क्या क्या किया। ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको कोई बेखबर रखेंगे, इंशाल्लाह ताला बाखबर रखेंगे और बहुत जल्द उस वीडियो की सीरीज़ आने वाली है। नहीं ऐसे ही है ना? या तो बस फिलहाल तो आप ये मेरी वीडियो यहीं तक देख लें। हाँ, मेहरबानी करके देख लेना ज़रूर और फिर बाकी इसके बाद जो है दूसरी वीडियो, अब मेरे पास और कोई वीडियो आसपा वाकई इसके अलावा अब कोई है भी कोई नहीं, तो ये आप करंट बनाया करें, अभी ऑटोमेटिकली वो करंट ही बन रही, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो यही करंट है और ये करंट सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। सही, ठीक है ना? तो बहरहाल बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मसूद भी इंजॉय कर रहा, और जिनको उर्दू इतनी अच्छी हो गई है बताऊं आपको, जिनको अब ना लोग पता हो उससे उर्दू में बात शुरू कर देते हैं और वो देखता रहता है और फिर हम लोगों में से कोई कहता है कि क्या कर रहे हो, बताया तो करो ना कि तुम्हें, वो कहता नहीं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ मैं समझने। मैंने कहा ना तो पाकिस्तानी इतने बड़े बड़े जनरेशन पाकिस्तानी नहीं समझ सकी, मैं क्या तू वो उर्दू में नहीं कहते कि तू कहाँ से समझ लेगा, हाँ वो कहते ऐसा कुछ मिसाल देते थे। तो पाकिस्तानियों को समझना और फिर उनकी ज़बान समझना इतना आसान काम नहीं है भाई, और अगर ज़बान समझ भी आ गई तो उनके दिलो दिमाग को समझना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए बेटर कि अपना एनर्जी ज़ाया ना ही करो। हमने कहा भैया तो अंग्रेज़ी बोलते रहो, ठीक है छोड़ दो उर्दू को। सो वो बेचारा अच्छा कोशिश करता है, वो कहता नहीं जब मैं कहता हूँ बोलने दो इनको, मैं सुनता हूँ उसमें कई वर्ड उसको आते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं उसको, क्योंकि फ़ारसी पर्शियन इसके कई वर्ड्स जो उर्दू के साथ मिक्स हो जाते हैं तो बहुत से लफ्ज़ तो वो बोलता है। और ये हमने उसको कहा कि मैंने कहा 1 महीने का टारगेट बना के यहाँ रुक जाओ हमारे पास, फिर उसके बाद देखो तुम्हारी उर्दू कैसे हो जाएगी। या उर्दू सिखा देगा तो सीख जाएगा, तो या अंग्रेजी सिखा देगा, या अंग्रेजी भी गई नहीं सीखनी, अंग्रेजी भी गई फिर, या तो ये होगा उसके साथ। वो बहुत माशाल्लाह फनी मिजाज का, जैसे जैद है ना वो खुश मिजाज, मेरी तरह सड़ी मैं खुश मिजाज हूँ, शुक्र अल्लाह का। बता शिकायत नहीं करना आइंदा, बिल्कुल लोगों को नहीं कहना देखा आप लोगों ने ये करते हैं ये हस्बैंड, फिर मुझे नहीं कहेगी डायरेक्ट, फिर ये पॉइंट आउट क्या करेगी ये हस्बैंड लोग ये करते हैं। तो मतलब खुश मिजाज ये है कि जैद कोशिश करता है कि मजाक जोक वगैरह जिस तरह मतलब वो करने, वो क्या कहते हैं बाकी तो खड़ूस ही है ऐसे, मैं समझ गया, बाकी तो सड़ियल है, खड़ूस है बिल्कुल। तो सड़ियल, हाँ सड़ियल तो बड़ा बड़ा लफ्ज है, ये क्या हो गया, सड़ियल कहाँ से आ गया? खड़ूस क्या आपको खड़ूस कुछ और मानो है, सड़ियल तो बिल्कुल ही वो अच्छा चले सड़ियल बहुत ही घटिया लेवल करता, खड़ूस ठीक है, चले सड़ियल वापस ले ले, खड़ूस पसंद आया जाए तो खड़ूस नॉट बैड इतना। तो इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में मैं आपसे फिर करेंगे मुलाकात, और जल्द मेरी वीडियो आने वाली है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम यंगला जान, यस छोटा वाला वेलकम।